خالد بن ولید یعنی ایک ایسا نام جس نے اپنے شورے اور بلیدان کے دم پر دنیا کا اتہاس بدل کر رکھ دیا۔ خالد بن ولید جسے دنیا سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے اسلام کا پرچم ایشیا سے لے کر یورپ تک پہنچا دیا، جس کے بارے میں پشچمی جگت کے اتہاسکار بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ خالد بن ولید نیپولین سے بھی مہان تھا۔ اس کے شور اور پراکرم کے آگے سکندر جیسے لوگ بھی چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ خالد بن ولید کون تھے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 سے ادھک جنگیں لڑی اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ وہ اجے پراکرمی اور تلوار کے ایسے دھنی انسان تھے جنہیں دیکھ کر دشمن کی روحیں کانپ جایا کرتی تھیں۔ خالد بن ولید نے جنگ کی ایسی تکنیکیں ایجاد کی کہ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے۔ ان کے بارے میں امریکی اتہاسکار ریچرڈ اے گیبریل لکھتا ہے کہ خالد اپنے وقت کا سب سے بڑا کمانڈر تھا۔ اس نے جو کارنامے پیش کیے ان کی سینیہ اتہاس میں مثال نہیں ملتی۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 7ویں صدی عیسوی سے، جب مکہ پر مشرکوں کا راج ہوا کرتا تھا۔ مکہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پر نہ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اسلام کے پرچار پرسار کرنے کی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے لے کر مدینہ، روم سے لے کر فارس تک کی طاقتیں ایک ہو رہی تھیں۔ اسلام کے بڑھتے ورچسو کو روکنے کے لیے ہر دن نئے نیم و قانون بنائے جا رہے تھے، اور یہ سب تب تھا جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد صرف کچھ ہزار تھی۔ مسلمانوں کے خلاف لڑی جا رہی اس ویچارک جنگ اور ویرودھ کی کہانی میں ایک آواز اور تھی، اور اس آواز کا نام تھا خالد بن ولید۔ خالد بن ولید اپنے والد مغیرہ کی طرح ہی اسلام کے سب سے بڑے ویرودھیوں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو جنگ احد میں جس لشکر نے شکست دی تھی اس کا نیترتو کوئی اور نہیں بلکہ خود خالد بن ولید کر رہے تھے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار کا زور آزما ہی رہے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کے بھائی الولید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب خالد بن ولید کا اسلام سے اتنا قریبی واسطہ پڑا کہ ان کا خود کا بھائی ہی اسلام سے پربھاوت ہو کر مسلمان بن گیا۔ وہ خالد بن ولید جن کا قبیلہ بنو مخزوم مکہ کا سب سے امیر قبیلہ تھا، آج اس کے گھر میں قرآن کی آیتوں کا ادگھوش ہو رہا تھا۔ جنگ احد کے بعد خالد بن ولید کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسلام کا وجے رتھ کسی کے روکنے سے رکنے والا نہیں ہے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف لڑ ضرور رہے تھے، لیکن ان کا دل اسلام کے لیے ہی دھڑک رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور ویرودھی خیمے میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی محفلوں میں خالد بن ولید کے شور پراکرم اور تلوار بازی کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس خالد بن ولید کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر مسلمانوں کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر بن جائے گا۔ خالد بن ولید سالوں تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس مہان جنرل نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ تاریخ نے اسے نام دیا سیف اللہ کا۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، وہ تلوار جس نے اسلام کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی پہلی اور سب سے بڑی جنگ بیزنٹائن امپائر کے خلاف لڑی۔ ایک طرف مسلمانوں کے 3000 سپاہی تھے تو دوسری طرف بیزنٹائن امپائر کے 1,00,000 سینک۔ مسلمانوں کے 3 کمانڈر پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ عقل کہتی تھی کہ مسلمانوں کے یہ 3000 سپاہی مٹی میں ملا دیے جائیں گے، لیکن خالد بن ولید نے اپنی یوگیتا اور پرتیبھا کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی فوج کو ہارنے سے بچایا بلکہ اسے سرکشت مدینہ واپس لائے۔ یہی وہ جنگ موتا تھی جس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ پشچمی اتہاسکار جان گلوب لکھتے ہیں کہ جنگ موتا میں خالد نے اسمبھو کو سمبھو کر دکھایا۔ خالد بن ولید نے وہ کیا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ اتہاسکار ابن ہشام لکھتا ہے کہ خالد کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو وہ طاقت ملی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ جس جنگ میں شامل ہوتے اس کا جیتنا نشچت مانا جاتا تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خالد بن ولید کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ جب وہ لشکر کی کمان سنبھالتے تو دشمنوں پر آسمان ٹوٹ پڑتا اور زمین انہیں کھا جاتی۔ انہوں نے بیزنٹائن اور ساسانی امپائر کی جڑیں ہلا دی تھی۔
खालिद बिन वलीद ही वो शख्स थे जिन्होंने सीरिया, इराक और फारस को इस्लामी राज्य का हिस्सा बनाया। आज अगर मुसलमान दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं तो उसमें एक बड़ा किरदार खालिद बिन वलीद का है। ये वो मर्द कलंदर था जिसकी तलवार ने हरकुलस, थियोडोर और मुसैलमा कज़्ज़ाब के वजूद मिटा दिए। 632 ईस्वी में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने नबी होने का दावा किया तो ये खालिद बिन वलीद की तलवार ही थी जिसने यमामा में उसके गुनाहों का हिसाब व किताब किया। खलीफा अबू बकर के आदेश पर खालिद अपने 13,000 लश्करियों को लेकर यमामा के मैदान की तरफ निकल पड़े। एक तरफ 13,000 की फौज थी तो दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का लाखों का लश्कर। लेकिन फतेह तो इस्लाम का मुकद्दर है, ताकत तो अल्लाह की है, निजाम तो अल्लाह का है। मुसलमानों ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्करों को काट कर रख दिया। इस जंग में 360 ऐसे मुसलमान शहीद हुए जिन्हें टुकड़ों में कुरान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा याद था। यही वो हादसा है जिसके बाद खलीफा उमर ने आदेश दिया कि कुरान को एक जगह पर लिखकर महफूज किया जाए और यहीं से कुरान को लिखने के उस सिलसिले की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। आज हमारे हाथों में जो कुरान मौजूद है उसे इस हादसे के बाद ही तरतीब दिया गया था। शुरुआत में खजूर के पत्तों और पौधों से बने खास तरह के कागज पर कुरान लिखा गया और उसे अलग अलग इलाकों में भेजा गया ताकि जंग के दौरान इसे महफूज रखा जा सके। खालिद ने अपनी रणनीति से इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इस जंग में खालिद की तलवार ने ऐसा कहर बरपाया कि मुसैलमा के साथ उसकी बगावत भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। खालिद बिन वलीद ने पूरी दुनिया पर अपने गहरे असरात मुरत्तब किए। भारत में आने वाला पहला मुस्लिम जनरल मोहम्मद बिन कासिम खालिद बिन वलीद से प्रभावित था। आज भी अमेरिका से लेकर यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े जनरल और कमांडर खालिद बिन वलीद को अपना हीरो मानते हैं। खालिद बिन वलीद के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम खालिद को किसी तरह की तकलीफ न देना क्योंकि वो अल्लाह की तलवार है जिसको उसने कुफ्फार पर खींचा है। खालिद बिन वलीद की तलवारबाजी और घुड़सवारी का किसी के पास तोड़ नहीं था। वो इस्लामी दुनिया के पहले कमांडर थे जिन्होंने जंग के लिए घोड़ों को ट्रेनिंग दिलवाई। वो अपनी फौज को मैदान में इस तरह से सजाते कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि उनके पास फौजियों की तादाद कितनी है। अपने इसी कौशल और इसी रणनीति के दम पर उन्होंने न जाने कितनी जंगें फतेह कर डाली। यरमूक की जंग में उनके 24,000 सिपाहियों ने दुश्मन के 1 लाख फौजियों के परखच्चे उड़ा दिए। खालिद ने अपनी घुड़सवार सेना का ऐसा इस्तेमाल किया कि रोमन सेना के पैर उखड़ गए। पश्चिमी इतिहासकार एडवर्ड गिबन अपनी किताब द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में लिखते हैं कि खालिद की सैन्य प्रतिभा ने रोम के सबसे मजबूत सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज भी उनकी घुड़सवार सेना और जंगी रणनीति को सैन्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है। खालिद बिन वलीद पैदा तो मक्का के सबसे अमीर खानदान में हुए, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी में गुजार दी। वो जंग के मैदान में योद्धा थे तो आम जिंदगी में इस्लाम के अदना से गुलाम। इतिहासकार लिखते हैं कि वो अपने सैनिकों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। जंग का मैदान हो या रोमन एम्पायर का किला, खालिद बिन वलीद ने कभी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पूरी धन दौलत और संपदा इस्लाम और मुसलमानों के लिए दान कर दी थी। पैगंबर मोहम्मद के जमाने में ही खालिद के पास मिल्कियत में एक तलवार के अलावा कुछ नहीं था। वही तलवार जो दुश्मनों से लड़ते हुए जंगे मोता में टूट गई। खालिद बिन वलीद खुद तो एक शेर था ही, लेकिन उसकी नस्लों में ऐसे योद्धा और बहादुर पैदा हुए जिन्होंने इंसानी तारीख को बदल कर रख दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि 16वीं सदी का मशहूर शासक और बाबर का सेनापति शेर शाह सूरी खालिद बिन वलीद की नस्लों में से था। ये वही शेर शाह था जिसने अपने शौर्य और बल के दम पर सूरी वंश की स्थापना की और भारत के पहले नेशनल हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। भारत का पहला डाकखाना शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। शेर शाह सूरी ने ही भारतीय रुपये की शुरुआत की जो आज भी भारत की सरकारी करेंसी मानी जाती है। सड़क के किनारे पेड़ लगाने और कुआं खुदवाने की परंपरा की शुरुआत शेर शाह सूरी ने ही की थी। शेर शाह सूरी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने कुछ सालों के लिए भारत से मुगल सल्तनत का सफाया कर दिया था। बिहार के मशहूर शहर पटना का नाम शेर शाह ने ही रखा था। आज शायद ही कोई जानता हो कि भारत के लिए इतना सब कुछ करने वाला शेर शाह
मशहूर सहाबी खालिद बिन वलीद की नस्लों में से था। ब्रिटिश इतिहासकार कैरोल हिलेनब्रैंड की माने तो खालिद बिन वलीद अरब जगत के सबसे मशहूर जनरल थे। स्कॉटिश पादरी और इतिहासकार विलियम मॉन्टगोमरी वॉट ने तो यहाँ तक कह दिया कि खालिद बिन वलीद वो शख्स है जिसने अपनी शानदार जनरलशिप के दम पर पहले अरब एम्पायर का निर्माण किया। खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में 100 से अधिक जंगें लड़ी और किसी में शिकस्त नहीं खाई। उन्होंने इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, यमन और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस्लाम को फैलाने का काम किया। खालिद ने सिर्फ इलाके ही फतेह नहीं किए बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत की। वो जिस इलाके को फतेह करते वहां के लोगों के लिए आम माफी का ऐलान कर देते। मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया जाता, खानकाहें और दरसगाहें बनाई जाती ताकि इल्म को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। ब्रिटिश इतिहासकार सर विलियम म्योर अपनी किताब द कैलिफेट इट्स राइज, डिक्लाइन एंड फॉल में लिखते हैं, खालिद बिन वलीद की रणनीति और साहस की मिसाल दुनिया के किसी भी सेनानायक में ढूंढना मुश्किल है। अमेरिकी सैन्य इतिहासकार रिचर्ड ए गैब्रियल अपनी किताब ग्रेट कैप्टन्स ऑफ एंटिक्विटी में लिखते हैं कि खालिद प्राचीन काल का सबसे बड़ा सेनापति था। उसने कम संसाधनों में जो कारनामे अंजाम दिए वो सैन्य इतिहास में बेमिसाल हैं। खालिद बिन वलीद ने जिन शहरों और जिन इलाकों को फतेह किया वहां आज भी इस्लाम के चिराग रोशन हैं। खालिद ने 20 से 25 बड़े इलाके और शहर फतेह किए जिसमें यमामा, नजद, बुजाखा, हल्ब, दमिश्क, हिरा, अंबर, इराक और ईरान के बहुत से शहर शामिल थे। ईरान के बारे में बात करें तो इस्लाम के आने से पहले ईरान पर पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म ही वहां का सरकारी मजहब था। ईरान मजूसियों का देश था और यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे। मुसलमानों के आने तक यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी जरतुश्त धर्म को मानती थी। मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी भी इस्लाम कबूल करने से पहले एक मजूसी थे। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह का फारसी में तर्जुमा किया था। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस में जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उसका नाम था खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुसलमानों ने पहली बार 633 ईस्वी में ईरानियों का मुकाबला किया और मेसोपोटामिया शहर को फतेह कर लिया। जिस वक्त खालिद बिन वलीद ने ईरान पर हमला किया उस वक्त उसकी सत्ता पर हरमुज बैठा हुआ था। कहा जाता है कि हरमुज एक जालिम बादशाह था जो हिंदुस्तान और अरब से आने वाले व्यापारियों पर जुल्म व तशद्दुद करता और उनके माल को लूट लिया करता था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसके अत्याचारों का विरोध कर सके। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब ये खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने खुद हरमुज का हिसाब करने का फैसला किया और अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले ही मिल चुकी थी। जब वो ईरान पहुंचे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। लेकिन खालिद कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो कमांडर था जिसने अपनी जिंदगी में 125 से अधिक जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी थे तो दूसरी तरफ हरमुज की लाखों की फौज और जंग का मैदान था ईरान का काजिमा शहर। यही वो शहर था जहां पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंगे सलासिल का। ये मानवा इतिहास की ऐसी जंग थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। सासानी बादशाह हरमुज ने खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया कि अगर दम है तो अकेले मुकाबला कर। खालिद बिन वलीद ने अपने पहले ही वार में हरमुज का सर धड़ से अलग कर दिया। इस मंजर को देखकर ईरानी फौज दहशत में आ गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इस जंग ने फारस के लोगों में मुसलमानों की ऐसी दहशत बिठाई कि सालों तक कोई उनका मुकाबला करने को तैयार न हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब अरब के बहुत से कबीले बगावत पर उतर आए और उन्होंने ज़कात और टैक्स देने से मना कर दिया तो ये खालिद बिन वलीद ही थे जिन्हें खलीफा अबू बकर ने अलम देकर बागियों की तरफ रवाना किया। फितने इर्तिदाद को खत्म करने और झूठे नबियों के किस्सों को तमाम करने में सबसे ज्यादा भूमिका खालिद बिन वलीद ने निभाई। खालिद बिन वलीद के बगैर दुनिया वैसी ना होती जैसी आज है। उन्होंने वक्त की सुपर पावर रहे रोम और फारस के वजूद मिट्टी में मिला दिए और मुसलमानों की रियासत की सरहदों को नील के साहिल से लेकर ताबखा के कासगर तक पहुंचा दिया। खालिद बिन वलीद जिस जंग में तलवार लेकर खड़े हो जाते फतेह उसका मुकद्दर बन जाती
लोगों को ये गुमान होने लगा कि अगर हमारे लश्कर में खालिद बिन वलीद है तो हम हार नहीं सकते। यही वो ख्याल था जिससे मुसलमानों की ईमान के जाने का खतरा महसूस होने लगा था। यही वजह है कि खलीफा अबू बकर के बाद जब खलीफा उमर सत्ता में आए तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को कमांडर के पद से हटा दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि फतेह अल्लाह की तरफ से है, मुल्क अल्लाह का है, हुकूमतें अल्लाह की हैं। अल्लाह का हुक्म और इस्लाम की फतेह किसी शख्स की मोहताज नहीं। हजरत उमर को डर था कि लोग अल्लाह के बजाय खालिद की इबादत न करने लगे। खालिद बिन वलीद किसी ओहदे या सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे थे। उनका मकसद इस्लाम की खिदमत और अल्लाह के पैगाम को दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाना था। यही वजह है कि जब उन्हें कमांडर इन चीफ के पद से हटाया गया तो उन्होंने उसे तुरंत कबूल कर लिया और पूरी उम्र एक सिपाही की तरह अपने फौजी दस्ते के साथ मिलकर इस्लाम की खिदमत करते रहे। खालिद बिन वलीद मरते दम तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी, लेकिन उन्हें मौत आई भी तो बिस्तर पर। खालिद बिन वलीद की जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम है कि मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिलों को खालिद बिन वलीद का ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जंग में मौत होती तो खालिद बिन वलीद बिस्तर पर न मरता। खालिद बिन वलीद आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। उनका नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर देता है। गाजा की तबाही और मुसलमानों की बेबसी को देखकर यही लगता है कि ये जमाना आज फिर किसी नए खालिद बिन वलीद के इंतजार में है। वैसे खालिद बिन वलीद के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और